हेलो एंड वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या कजन प्रियंक शर्मा की वेडिंग पार्टी में श्रद्धा कपूर बन गई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन? विराट कोहली ने किया admit that becoming a father will remain the greatest moment in his life. सोहा अली खान ने रिवील किया कि कैसे वो कोइंसिडेंस में करती हैं बिलीव. फादर सन डुओ सैफ अली खान और लिटिल तैमूर अली खान को रिसेंटली पैप्स ने किया कैप्चर नियर हिज रेजिडेंस. लेकिन इस दौरान अक्सर पैप्स को वेव करने वाले या नो फोटोज एंड नॉट अलाउड कहने वाले तैमूर अली खान दिखे बिजी प्लेइंग अराउंड विद अ मोबाइल फोन. हालांकि ध्यान से देखें तो थोड़ी देर बाद ही तैमूर अली खान ये फोन अपने केयरटेकर को लौटा देते हैं. अब ये पैप्स को इग्नोर करने की नई स्ट्रेटजी है या वाकई तैमूर अली खान इज नाउ अ बिग बॉय हु लव्स गैजेट्स एंड ऑल? वी डोंट नो. मूविंग ऑन, जहां मॉमी टू बी करीना कपूर खान अपने वर्क कमिटमेंट्स को कंप्लीट कर रही हैं, डैडी सैफ अली खान लिटिल टिम को कर रहे हैं लुक आफ्टर और अक्सर तैमूर अली खान को अपने साथ जिम भी लेकर जाते हैं. वहीं सैफ अली खान की सिस्टर एंड एक्ट्रेस सोहा अली खान थर्सडे को बिजी रही एक बुक लॉन्च इवेंट में, जहां उन्होंने बताया कि वो कोइंसिडेंस में बिलीव करती हैं और इस तरह एक बार उन्हें मिली एक सीख that never lie to your husband. I thank, the universe every day for giving me, Inaya, certainly. But I mean, even when it comes to small things, like I was relating to your solitaire, we went on holiday to Dubrovnik once in Croatia, and Kunal and I had not been together for that long. And I'm not as responsible as he is with my things. So it was one of the first few holidays we'd taken together, and I went off with the girls to do something and the boys went off to do something together. And I'd taken some money. We'd kept our money together. I'd taken some money from him and put it in a temporary wallet. And then coming back, I'd lost that money. So I panicked because I said, oh God, he's going to think, I'm so irresponsible. And it was it wasn't a lot of money, but it was nothing like a solitaire, but it was, a significant amount of money. And so, of course, I panicked and I decided to, firstly, he is like a jasoos. You cannot keep one thing from that man. So I went out and I bought the same wallet. Then I went to the bank and took out money from the bank and I put it in the similar wallet and I gave it back to him. And he said, you've given me more money than I gave you. How is that possible? So I said, something I said. And honestly, I forgot about it after that. And I said, okay, whatever, that money is gone. And 2 days later, we were in a taxi coming home from dinner from a big city. And to cut a very long story short, we were sitting in the same taxi and I found my wallet on the floor. But what is worse is that I didn't find it, Kunal found it. And he said, "Ye kya hai?" And then I had to tell him that I had lied. And he was so angry with me. So never lie to your husband. Firstly, number one, you should never lie. But if that wasn't a coincidence, I mean, I've always believed in things, but that was the biggest coincidence that has ever happened to me. And after that, I really thought that there has to be a larger power. And I think that was the purpose of that was to teach me not to lie. Essentially, that is what I got out of it. Of course, I got my money back as well, but that was my lesson. So things have happened to me, and I've been very grateful for many things in my life. Did you lie after that to him ever? Yes, many times. शाज़ा मोरानी और प्रियंक शर्मा की वेडिंग फेस्टिविटीज रही स्टार स्टडेड.
लेकिन इस बिग बैश की सबसे बड़ी हाईलाइट बन गई श्रद्धा कपूर। साथ में एक फोटो दे दो सदा जी, एकत्र जरा थांबा ना मॅडम प्लीज, मॅडम थांबा ना इथे। रोहन श्रेष्ठा के साथ पोज करने के लिए कहकर कर दिया पूरी तरह से ऑकवर्ड। साथ में एक फोटो दे दो सदा जी, एकत्र जरा थांबा ना मॅडम प्लीज, मॅडम थांबा ना इथे। वेल, श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा की डेटिंग की न्यूज पिछले कुछ सालों से चल रही है, बट दे हैव नेवर कंफर्म्ड एनीथिंग। लेकिन वरुण धवन को जब रोहन श्रेष्ठा ने विश किया ऑन हिज वेडिंग, वरुण धवन का रिप्लाई कि होप यू आर रेडी के बाद हर कोई गैस करने लगा क्या श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा की शादी होने वाली है। और रिसेंटली एयरपोर्ट पर पैप्स ने डायरेक्टली श्रद्धा कपूर से पूछ लिया सवाल। वेल, साफ है श्रद्धा कपूर हो गई थोड़ी ऑकवर्ड विद द क्वेश्चन। लेकिन इस सवाल के एक दिन बाद ही अपने कजन की वेडिंग बैश में रोहन श्रेष्ठा के साथ दिखकर श्रद्धा कपूर ने दे दिया है एक सिग्नल। साथ में एक फोटो दे दो सदा जी, एकत्र जरा थांबा ना मॅडम प्लीज, मॅडम थांबा ना इथे। मूविंग ऑन, बात करें प्रियांक शर्मा और शाजा मुरानी की इस पार्टी की, तो ग्रूम प्रियांक शर्मा इस पार्टी में दिखे सुपर एक्साइटेड और अपनी मॉम के साथ उन्होंने जमकर किया डांस। साथ ही पार्टी के बाद प्रियांक शर्मा और शाजा मुरानी नजर आए मीडिया के सामने पोज करते हुए, एंड दे बोथ लुक्ड अडोरेबल इन देयर ड्रेसेस। जोड़ी अच्छी है, शादी मुबारक हो भाई, शादी मुबारक भाई। मिला और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ग्रूम प्रियांक शर्मा ब्राइड शाजा मुरानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मिला शाजा मुरानी और प्रियांक शर्मा 16 इयर्स से रिलेशनशिप में थे, एंड रिपोर्टेडली दे स्टार्टेड डेटिंग व्हेन दे वर इन स्कूल। Even for their higher studies, they went abroad together. यानी ये बॉलीवुड का एक और चाइल्डहुड रोमांस है जिसने शादी का रूप लिया है। शाजा मुरानी प्रोड्यूसर करीम मोरानी की डॉटर हैं, वहीं प्रियांक शर्मा पद्मिनी कोल्हापुरे और प्रदीप शर्मा के बेटे हैं। फिल्मी फैमिली से होने की वजह से बोथ प्रियांक शर्मा और शाजा मुरानी करना चाहते हैं बॉलीवुड में काम। एंड प्रियांक शर्मा ने तो सब कुशल मंगल से एज एन एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है, लेकिन शाजा मुरानी का ड्रीम है कि वो बने एक डायरेक्टर, और उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में असिस्ट भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक द कपल हैड अ कोर्ट मैरिज इन द मॉर्निंग एंड लेटर थ्रू अ पार्टी फॉर देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स इन मुंबई। श्रद्धा कपूर और उनकी फैमिली के अलावा अनिल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता कपूर, बोनी कपूर, जूही चावला, सनी देओल और निखिल द्विवेदी जैसे स्टार्स नजर आए। अपेरेंटली इस रजिस्टर्ड मैरिज के बाद शाजा मुरानी और प्रियांक शर्मा की ग्रैंड वेडिंग नेक्स्ट महीने होगी, जहां फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाएगा। सोर्सेज का कहना है कि ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग के साथ साथ एक स्पेशल व्हाइट वेडिंग प्लान की गई है, जो शाजा मुरानी और प्रियांक शर्मा का ड्रीम है। वेल, वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी के बाद एक और बिग फैट इंडियन वेडिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है, एंड वी विल ब्रिंग यू ऑल द अपडेट्स फ्रॉम दिस वेडिंग। To me, becoming a father has been and will remain the greatest moment in my life. विराट कोहली ने परफेक्टली किया आंसर, उनके लिए उनकी डॉटर और क्रिकेट दोनों ही कैसे हैं इम्पोर्टेंट। विराट कोहली ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आने का लिया था डिसीजन, सोशल मीडिया पर कई बार उन्हें ट्रोल किया गया। यहाँ तक कि इंडिया की हिस्टोरिक जीत इन ऑस्ट्रेलिया के बाद कुछ नेटिजन्स ने यहाँ तक कहा, इंडियन टीम डज नॉट नीड विराट कोहली। विराट कोहली को टारगेट करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे उनके मूव ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया फॉर हिज डॉटर्स बर्थ। लेकिन पहली बार अपनी डॉटर के बर्थ और इंडियन टीम के हिस्टोरिक विन के बाद जब विराट कोहली मीडिया से मिलने आए, तो उन्होंने दिया इन सवालों का जवाब जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। Compared to me, becoming a father has been and will remain the greatest moment in my life, in both our lives, and that is something that has to be experienced to understand what I'm saying. Secondly, the
connection to the team does not go away in any situation, especially when you have given everything for the team, especially the test side for the last 6 years, on a daily basis, being motivated to take test cricket on top, take Indian cricket on top, and the whole group has put in so much effort, and you're connected invariably. And I was watching all the games even before. I mean, the Sydney test I clearly remember. The last test I clearly remember when Shardul and Washington were going through a partnership. I was watching it on my phone, just before we had to go in when the doctor called us. So, विराट कोहली के लिए उनकी प्रायोरिटीज क्लियर हैं। जहां उनके लिए उनकी डॉटर का बर्थ है सबसे स्पेशल मोमेंट इन हिज लाइफ, वहीं अपनी टीम के साथ विराट थे मेंटली और इमोशनली ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन टूर। विराट कोहली का रेवलेशन कि वो अपनी टीम के मैच को देख रहे थे ऑन द मोबाइल व्हाइल अनुष्का शर्मा वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू डिलीवर हर बेबी, ये प्रूव करता है कि अपनी टीम को वो देते हैं कितना इम्पोर्टेंस। To me, becoming a father has been and will remain the greatest moment in my life, in both our lives. I was watching it on my phone, just before we had to go in when the doctor called us. So, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि उनके हर एक स्टेप को माइन्यूटली देखा जाता है और अक्सर बिना वजह ये दोनों स्टार्स ट्रोलिंग का शिकार भी होते हैं। लेकिन जिस तरह इन दोनों ने अपनी लाइफ में सभी चीजों को अचीव किया है, इनका जवाब इनके काम से हर किसी को मिल जाता है। वैसे रिसेंटली अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मीडिया के सामने आए थे when they took their baby to a clinic, और यहाँ अनुष्का शर्मा ने मीडिया को थैंक्स कहा for respecting their wish of not clicking pictures of their daughter. थैंक यू। अनुष्का शर्मा ने रिसेंटली अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी डॉटर का नाम वामिका रखा है और रिपोर्टेडली इस नाम का मतलब होता है गॉडेस दुर्गा। वैसे अनुष्का शर्मा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जितनी सुपर एक्टिव थी ऑन सोशल मीडिया, अपनी बेबी के बर्थ के बाद वो पूरी तरह से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट गायब हैं। इट सीम्स अनुष्का शर्मा मॉमी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं। ऐश्वर्या राय को एक डेट पर ले जाकर अभिषेक बच्चन हुए थे एम्बैरेस? क्या हुआ था इस डेट के दौरान कि अभिषेक बच्चन इसे बुलाते हैं मोस्ट डिजास्टरस डेट ऑफ हिज लाइफ? और ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या रिएक्शन था ऑन दिस अनफॉरगेटेबल डेट? जूनियर बी अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन का अच्छे हस्बैंड की तरह रखते हैं पूरा ख्याल। ऐश के साथ उनके शूटिंग सेट पर अकम्पनी करना हो या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ करनी हो शॉपिंग, एक डोटिंग हस्बैंड की तरह अभिषेक बच्चन सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले अपने एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने रिवील किया कैसे उनकी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी पर उन्होंने प्लान की थी एक सरप्राइज रोमांटिक डेट, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। अभिषेक बच्चन ने रिवील किया कि वो ऐश को मालदीव्स लेकर गए थे एंड इन द फ्रंट ऑफ द बीच उन्होंने कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था, लेकिन बीच पर हवा इतनी तेज थी कि एक तो कैंडल बार बार बुझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीच की रेत उनके खाने में चली गई और पूरा खाना खराब हो गया। अभिषेक बच्चन रिवील्ड कि उनकी डिनर डेट का पूरा प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने फिर ऐश के साथ घंटों बीच पर बैठकर बातें की और वो मोमेंट अपने आप में स्पेशल बन गया। अभिषेक बच्चन ने सभी मेन को ये एडवाइस की है व्हाइल दे प्लान बीच डिनर डेट, तो उनके एक्सपीरियंस को वो जरूर रखें ध्यान में, क्योंकि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती।
अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अपने रिलेशनशिप पर एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील की थी कि ही इज द वन जो झगड़ा होने के बाद उन्हें मनाते हैं और बिफोर गोइंग टू स्लीप दे सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस। शायद यही वजह है कि कपिल शर्मा के शो पर जब ऐश से पूछा गया अबाउट द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन द प्लैनेट तो ऐश ने कहा आई हैव मैरिड हिम। वैसे अभिषेक बच्चन अपनी वाइफी डियर के साथ जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं और उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा वेरी सून आई होप आई रियली एंजॉय वर्किंग विद हर वी गेट अ लॉट ऑफ फैन मेल आस्किंग अस टू बी टुगेदर अगेन ऑन स्क्रीन वीड बी मोर देन ग्लैड टू गेट टुगेदर। वेल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन है वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल्स ऑफ बॉलीवुड एंड वी आर श्योर AB की फैमिली ने उनके बर्थडे को बनाया होगा सुपर स्पेशल। सोशल मीडिया हो या फिल्मी पार्टीज, किस स्टार का है मैक्सिमम बज़ और कौन कर रहा है ट्रेंड ऑल ओवर? लेट्स टेक अ लुक। सलमान खान फिल्म अंतिम की शूटिंग कंप्लीट करेंगे विद अ लैविश लार्जर देन लाइफ सॉन्ग भाई का बर्थडे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में ये एक सिचुएशनल सॉन्ग होगा और इस सॉन्ग में डॉन यानी आयुष शर्मा के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा और सलमान खान उन्हें ज्वाइन करेंगे इन द सॉन्ग। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल मराठी फिल्म मुंशी पैटर्न जिस पर अंतिम बेस्ड है उसमें भी एक ऐसा सॉन्ग था, लेकिन उसमें पुलिस का रोल प्ले कर रहा एक्टर सॉन्ग में शामिल नहीं था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने लिया सलमान खान को सॉन्ग में शामिल करने का डिसीजन एज ही फील्स सलमान खान की वजह से इस सॉन्ग की होगी मास अपील। क्या बॉलीवुड डीवा रेखा करने जा रही हैं फिल्म्स में वापसी? रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते हैं और इसलिए उनके दिमाग में रेखा, शबाना आजमी, तबू और हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस का नाम है। जहां तक इस फिल्म में मेल रोल के लिए कार्तिक आर्यन का नाम सामने आने की बात है तो सोर्सेस का कहना है कि संजय लीला भंसाली ने मेल लीड एक्टर की कास्टिंग अभी तक नहीं की है एज द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड फीमेल कैरेक्टर्स। रिपोर्टेडली ये फिल्म लाहौर के ब्रॉथल एरिया हीरा मंडी की कहानी है। महाराष्ट्र के यावतमल डिस्ट्रिक्ट में कंगना रनौत के पुतले को जलाया गया और उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने के लगे नारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फार्मर्स की विडोज और ऑर्फन्स ने एक जुलूस निकाला और कंगना रनौत के रीसेंट कमेंट ऑन फार्मर्स को स्लैम करते हुए उनके पुतले को जलाया। आपको बता दें कंगना रनौत ओपनली फार्मर प्रोटेस्ट में शामिल हुए मिसक्रिएंट्स को स्लैम कर रही हैं। प्रियांक शर्मा अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शाजा मुरानी के साथ शादी करके हैं ओवर द मून और रिसेंटली अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज के दौरान प्रियांक शर्मा का लव फॉर शाजा मुरानी सबके सामने आया जब उन्होंने अपनी ब्राइड की जमकर तारीफ की। मिला मिला हाँ मिला। यही नहीं, प्रियांक शर्मा asked the paps whether they ate or not after the function. सिंगर हर्षदीप कौर ने अनाउंस किया that she is expecting her first child और पूरी इंडस्ट्री से उन्हें सेलेब्स ने किया विश। अरमान मलिक से लेकर दिव्यांका त्रिपाठी ने हर्षदीप को दी बधाई। आपको बता दें हर्षदीप कौर अपने फेमस सॉन्ग्स लाइक अतिया करूं फ्रॉम रॉकस्टार, दिलबरो फ्रॉम राजी, हीर फ्रॉम जब तक है जान, जालिमा फ्रॉम रईस को लेकर जानी जाती हैं। हेलो, कैसे हैं मैम? कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक हो रही हूँ। रिया को स्पॉट किया गया आउटसाइड द जिम और काफी वक्त बाद ये पहला मौका आया जब रिया नजर आई लाइवली मूड में एंड शी इवन सीम्ड फ्रेंडली विद मीडिया। वेल, जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया ट्रायल हुआ था उससे रिया वाज अर्लियर अपसेट विद द मीडिया। सोनम कपूर और आनंद आहूजा का सोशल मीडिया पीडीए आजकल खूब वायरल हो रहा है। रिसेंटली सोनम कपूर ने लिखा एक पोस्ट ऑन सोशल मीडिया और आनंद आहूजा ने सोनम कपूर को उनके पोस्ट के लिए किया ट्रोल फॉर मिसिंग सम पंक्चुएशंस। वेल, हाल ही में सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बीच की प्रॉब्लम के रूमर्स हर जगह फ्लोट कर रहे थे, लेकिन इनका पीडीए देखकर साफ हो जाता है कि इट वाज फेक रूमर। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह अब एड वर्ल्ड के भी किंग बन गए हैं। कहा जा रहा है कि ऑनगोइंग पैंडेमिक के बीच रणवीर सिंह ने साइन किए 9 ब्रांड्स और इसके लिए एस्टिमेटेड 75 करोड़ रुपीस वो कर रहे हैं चार्ज। वेल, ये डेफिनेटली है एक बिग अचीवमेंट एज रणवीर सिंह फिलहाल यंग जनरेशन के एक्टर्स में सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बनते जा रहे हैं। जॉन इब्राहिम की वाइफ प्रिया रंछाल अक्सर मीडिया लाइमलाइट से रहती हैं दूर, लेकिन रिसेंटली दोनों को स्पॉट किया गया ड्यूरिंग अ बोट राइड एट द गेटवे ऑफ इंडिया।
हालांकि इस दौरान एक बार फिर प्रिया रंचाल कैमरा से दूर नजर आई, but she posted a video of John Abraham and their pets. Apparently, John Abraham अपनी फिल्म अटैक के लिए शूटिंग लोकेशन पर जा रहे थे। Coming up on the show, कृति खरबंदा ने अपने और पुलकित सम्राट की शादी की रिपोर्ट्स पर किया रिएक्ट। He is my sanity. He is my rock. He is my sanity, and he's my biggest cheerleader. हम दोनों को ऐसा लगता है हम लोग बच्चे हैं, कुछ भी अभी हो रहा है. I think probably from the age of 16, I haven't taken a rupee from my parents. I've been very clear that मैं अपना ध्यान छोड़ूं, मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ. Anyone who watches the film, it's going to be very easy for them to look at me, say हाँ अच्छा किया है, बुरा किया है, निकल गए. A lot of people call me Donald. I don't know why they call me Donald. I don't understand why they think I look like Donald. अपनी शादी, पुलकित सम्राट के साथ रिलेशन, अपने स्ट्रगल, हर एक मुद्दे पर एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने दिया कैंडिडली जवाब when she joined us on our show Zoom Happy Space with रुद्रानी। कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट का रिलेशनशिप किसी से नहीं छिपा। They are one of the most adorable couples in B-Town। और हमसे एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में कृति खरबंदा ने डिटेल में पुलकित सम्राट और अपने रिलेशनशिप पर और शादी पर की बात। It does. He is my sanity. Let me put it that way. He is my rock. He is my sanity, and he's my biggest cheerleader. And I'm just so glad that he's my best friend. And I wouldn't have it any other way. Not that I think we're too young, yeah, for this right now. Honestly, हम दोनों को ऐसा लगता है हम लोग बच्चे हैं, कुछ भी अभी हो रहा है. But I'm just glad. I think it's the first time in my life that I feel a friendship that is very, very, very strong. And I would like to make it stronger. Work towards making each other happy. और जब होगा जो होगा तब होगा और सबको पता होगा। कृति खरबंदा आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं, she had to face tough times and she struggled very hard। और अपने स्ट्रगल की डिटेल्स कृति खरबंदा shared with us। We don't have a choice. I am someone who has been very independent. I think probably from the age of 16, I haven't taken a rupee from my parents. I've been very clear that मैं अपना ध्यान छोड़ूं, मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ। और मुझे पता है that I do it with pride and I'm very proud of everything I've done. Maybe which is why I have no regrets because I know my reasons. And I also believe that there is a superpower watching over me and protecting me when you don't come from a background where you are blessed or you are privileged. But even there, I think you need to use your brain. I have made decisions that I am proud of because I know my reasons and no one else can compare. आप आके मेरा घर थोड़ी ना चला रहे हो। कृति खरबंदा ने ये भी रिवील किया how she is still working very hard and despite being ill, she cannot take an off. When I started shooting 14 Fere, I was recovering from malaria and it wasn't easy. It was a very, very difficult time. In the last 2 months, I've lost over 6 kilos because of malaria. And I was already a petite person. I've become even more petite. But I couldn't call in sick. I had to be at work. And I didn't have a choice. And I was working 18 hours a day, sometimes 20 hours a day. And it took a toll on me. And anyone who watches the film, it's going to be very easy for them to look at me, say, हाँ अच्छा किया है, बुरा किया है, निकल गए. But I know the struggle, that the pain that I went through while shooting this film, and it was all worth it because it was a project that I loved. I mean, it is a project that I love. But yeah, the struggles are real because it's about being at the right place at the right time, doing the right thing, and you can't always be right. Well, Kriti Kharbanda का struggle रहा है काफी real, and she deserves an applause for what she has achieved. Moving on, Kriti Kharbanda ने दिया जवाब of some more fun questions like her nickname and funny things she did in her audition. A lot of people call me Donald. I don't know why they call me Donald. I don't understand why they think I look like Donald. But I think Donald has got to be like the funniest nickname that's ever been given to me, and it doesn't abuse me. I do not like it. Kit Kat is another name that I've always loved. I thought it was very sweet when my friends have always called me that. Yeah, I have genuinely never had weird auditions. It's become weird because of what I've done in the audition. This is one time someone said, "Aapne गाना गाना है क्योंकि यार you're playing a singer in the film." So I said, "So what does that have to do with me singing?" I mean, ऐसे तो मुझे कभी पिक्चर मिलेगी ही नहीं क्योंकि मैं तो गाना गा ही नहीं सकती. प्लेबैक सिंगर्स इसीलिए तो होते हैं, आपके एल्बम कोई और बनाएगा.
I was like, play a song and I lip sync with it. And they said, no, you have to sing. And then I sang and they freaked out and I didn't get that. Well, Kriti Kharbanda के साथ ये interaction रहा super fun and entertaining, and we wish her all the best for her future projects.